all of you। पायोनियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। टुडे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक्स। यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इकोनॉमिक्स जो मेंस जीएस पेपर 3 में भी इकोनॉमिक्स है और यूपीएससी प्रीलिम में भी इकोनॉमिक्स है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस समझ लेते कि मेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और प्रीलिम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। मेंस के लिए एप्लीकेशन ओरिएंटेड टॉपिक्स है, और प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल एज वेल एज करंट इन नेचर है। बेसिकली वी आर यूजिंग सोर्स, what are the sources to cover the economics in the UPSC prelim 2026। फर्स्ट बेसिक सोर्स है कि एक स्टैंडर्ड बुक, we will refer one standard book। उस स्टैंडर्ड बुक का नाम है सिंघानिया। सिंघानिया सर का इकोनॉमिक्स की बुक लेनी। अदरवाइज और जो फेमस एक बुक है रमेश सिंह, वन स्टैंडर्ड वन स्टैंडर्ड बुक बाय सिंघानिया सर एंड सेकंड बाय रमेश सिंह। देन सेकंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर इज सेकंड। देन स्टैंडर्ड बुक। करंट अफेयर से भी टॉपिक्स कवर करने, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर दोनों को कंबाइन मिला के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें स्टैटिक भी कवर करना है और डायनामिक भी हमें कवर करना है। सो करंट अफेयर जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हो, द हिंदू न्यूज़पेपर हो, इंडियन एक्सप्रेस, या एनी अदर सोर्स, किसी क्लास के करंट अफेयर के जीस्ट हो, द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, एज पर योर कन्वीनियंस एंड एज पर योर whatever source you are referring for the current affair, from that source you must focus on the different economic concept, different current affair news regarding to the economics।
Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. I will show you the UPSC Prelim PDFs and nature of questions asked in the previous years. Here we will just first cover the different questions with regarding to the economics. यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं पहले. तो हमें समझ में आएगा कि कौन से एरियाज पे हमें फोकस करना है. यहाँ पे देखिए कामराजन फोर्ट. This question, it is related to the economics. Consider the following pair: Kamarajan Port, Mundra Port, Visakhapatnam ports. So, Kamaraja Port, Mundra Port, Visakhapatnam ports, 32. So, this is important question with regarding to the infrastructure.
Then with reference to India's project on connectivity, consider the following statement. East-West corridor under the Golden Quadrilateral project connect the Dibrugarh and Surat. Then trilateral highway connects the Morea in Manipur and Chiang Mai in the Thailand via Myanmar. Means this question on transport. It is related to the transport. About three-fourths of world's cobalt metal required to manufacture. It is also import-export regarding question. Then interest income from the deposit investment trust invites distributed their investment. Yeah, again securities के regarding questions. Then banking topic in the post-pandemic recent many central banks worldwide had carried out the interest rate hike. It is on core banking topic. Again, consider the following activities of the RBI is considered to be part of sterilization. Again, banking. Then carbon market transfer resources from private sector to the state. Then on a capital market, we have seen the UPSC prelim papers. So government bond market, call money market, treasury bill, stock market. So यूपीएससी एग्जाम यूपीएससी के प्रीलियम पेपर्स में हमें कैपिटल मार्केट्स पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायनामिक इन नेचर है. देन brand recognition, inventory, which of the consider the investment in the following assets: brand recognition, inventory, intellectual property, mailing list of the client. How many of above are considered an intangible investment? तो इस पे स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड concept based question है. Then government of India provide the minimum support price for the Niger seeds. Niger is cultivated as a kharif crop. It is based on the agriculture, agroeconomics. This question is related to the agroeconomics. Agroeconomics. Affordable housing. On how many of above does UNOPS Sustainable Investment in Infrastructure Innovation Initiative focus for its investment? Affordable housing, mass rapid transport, healthcare, renewable energy. तो जो भी क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चंस आए हुए इकोनॉमिक्स टॉपिक पे, तो टोटली डायनामिक इन नेचर है. जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन नहीं है. मतलब रिलेवेंस बेसिक से ही है, लेकिन क्वेश्चंस का नेचर हमें थोड़ा डायनामिक दिखाई दे रहा है. ओवर जो क्वेश्चन है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, देन फिजिकल डिफिशिएंट, बजट डिफिशिएंट, प्राइमरी डिफिशिएंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसे ओवर क्वेश्चंस थोड़े मिसिंग आउट दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ सालों से. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि पूरे डायनामिक है. ये यही नहीं, इस साल का ही ये ट्रेंड नहीं है. तो पिछले कुछ सालों से यही सेम ट्रेंड हमें
सो ये 2023 का पेपर था। So this is Botswana. It is famous for the diamond, Chile for the lithium, Indonesia for the nickel. एक रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन है आईआर था। आईआर प्लस स्टैटिक प्लस डायनामिक ऐसे दोनों एस्पेक्ट्स है इसमें। देन सपोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80 करोड़ एंड revenue receipts of the government are 60,000 crore. It is based on budget। बजट जो भी टॉपिक है, बजट की जो दो साइड्स होती है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अगेन रेवेन्यू में दो पार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस पे क्वेश्चन से देन इसमें भी बजट प्लस रेवेन्यू डिफिशिएट, फिजिकल डिफिशिएट, प्राइमरी डिफिशिएट, ये भी कंसेप्ट उन्होंने मर्ज किए हुए। सेकंड ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन है। Then World Bank warned the India about become first place where wet bulb temperature routinely exceed World Bank पे क्वेश्चन है। Then next question is related to the fiscal deficit। A country's fiscal deficit stand at 50,000 crore and is receiving 10,000 crore from the non-debt। Again, application oriented question on a deficit। Next question is related to the Finance Commission। 15th Finance Commission, its recommendation in facts। Then International Bank for the Restructure and Development IBRD regarding core question again. It is a core question on a World Bank। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. It is again question related to the government scheme। UPI regarding so banking RTGS UPI। टू क्वेश्चंस ऑन अ बैंकिंग। तो बैंकिंग की जो भी करंट न्यूज है, करंट हैपनिंग से उस पे क्वेश्चंस हमें दिखाई दे रहे हैं। देन रेयर अर्थ एलिमेंट, इंडियन रेलवे प्रिपेयर्ड फॉर द नेशनल रेलवे प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम 2028। इट इज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट विथ डायनामिक इन नेचर। देन बैंकिंग इन डायनामिक इन नेचर, रिसोर्सेस मिनरल्स इंडस्ट्री डायनामिक इन नेचर। हमें बहुत कोर क्वेश्चंस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द इकोनॉमिक्स, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। तो गिव मी 1 minute, आई विल शो यू मोर पेपर विथ रिगार्डिंग टू द यूपीएससी प्रीलिम्स।
नेक्स्ट 2021 का ये पेपर है। इसमें भी जो भी कुछ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन गवर्नर आरबीआई के रिगार्डिंग, सो बैंकिंग है। सेकंड क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया, तो एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी पे बेस्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, ये अभी जो 2021 के पहले दो क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द बैंकिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टैटिक पॉइंट से है। इकोनॉमिक रिसेशन, अगेन कंसेप्चुअल एंड स्टैटिक, other things remaining unchanged, market demand for food might increase if stay static with conceptual understanding. Urban Cooperative Bank in India, consider the following: अर्बन कोऑपरेटिव, स्टैटिक, विथ डायनेमिक इन नेचर, क्योंकि बहुत से मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है रिसेंटली बहुत फ्रॉड हुए उसमें, इसलिए, और इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस में भी कुछ चेंजेस हुए थे रिसेंटली। ड्यू टू दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये डायनेमिक, करंट और डायनेमिक का मिक्सचर है ये, इसलिए इस पे क्वेश्चन बना है। बॉन्ड यील्ड अगेन ऑन कैपिटल मार्केट, क्वेश्चन रिगार्डिंग टू बॉन्ड यील्ड, then foreign currency convertible bond, foreign institutional investment with certain conditions. Effect of devaluation of a currency. 11th नंबर का जो भी क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर इज एन इकोनॉमी increasing with which of the following? Again static question, which of the following effect of creation of black money in India has been main cause of worry for the government of India? Question number 12, with reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused increase by which of the following? With reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused and increased by which of the following? Expansionary policies, fiscal stimulus, inflation indexing, higher purchasing power, rising interest rate. Then treasury bills, debt bond,
It is again question on capital market. Central bank function as a lender of last resort usually refers to which of the following? Question on static point, water credit, dynamic question. तो जो भी 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 विथ रिगार्डिंग टू वाटर क्रेडिट, डायनेमिक क्वेश्चन है। तो जिस पेपर 2022 का ये यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, इस पेपर को भी थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते कि कौन से एरियाज पे कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमें सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करने से पहले हमारा अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे पूरे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने वाले हैं। क्वेश्चन विथ रिगार्डिंग टू कीबोर्ड, कॉपी बोर्ड, रबर बोर्ड, ये क्वेश्चंस रेगुलेटरी बॉडी पेपर 2 या पॉलिटी का भी पार्ट बनता है और इकोनॉमिक्स का भी पार्ट बनता है। टी बॉडी, यहाँ से अभी इकोनॉमिक्स के टॉपिक स्टार्ट है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएन फेडरल रिजर्व कुड लीड टू द कैपिटल फ्लाइट। अगेन ये फेड रिजर्व के जो भी एक्शंस होते हैं उस पे करंट बेस्ड क्वेश्चन है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, रिसेंट डेवलपमेंट की बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो कंसेप्चुअली लेकिन एक स्ट्रक्चरल मेजर है। देन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, अगेन एग्री इकोनॉमिक्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कैपिटल मार्केट। In India, credit rating agencies are regulated by the Reserve Bank of India. So banking regarding question. Then Asian Infrastructure Bank Missile Technology Control Regime, Shanghai Cooperation Organization. इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, डायनेमिक इन नेचर। जो ऑर्गेनाइजेशन इट इज अ पार्ट ऑफ आईआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आईआर एज वेल एज इकोनॉमिक्स। तो ये टॉपिक आईआर प्लस इकोनॉमिक्स ऐसा कंबाइंड टॉपिक से, लेकिन डायनेमिक इन नेचर। In India, which of the following is responsible for maintaining the price stability by controlling the inflation? So, static question, non-fungible token, NFTs, dynamic. Then, with regarding to Vietnam, dynamic question. Then, infrastructure, Ghataprabha, Marathon. It is mixed of economics and geography. मतलब उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में भी रख सकते हैं और ज्योग्राफी में भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 10 क्वेश्चन है with regarding to the economics. ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री, 2022, 2021 और याद है 2018 का पेपर है।
इस लास्ट पेपर को हम कवर कर लेते कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए इकोनॉमिक्स टॉपिक पे, तो हमें क्लैरिटी होगी कि हम नेक्स्ट 3-4 मंथ हम कैसे पढ़ाई करेंगे इस टॉपिक को। तो देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर यूज फॉर then visible light communication technology. Okay, blockchain. It is on science and tech questions. Golden trenching या reserve trench refers to a credit system granted by IMF to its member. Reserve trenching. Mixed question से इस पेपर में. Then Aadhaar metadata cannot be stored more than 3 months. Mixed question से इस पेपर में. Just give me 1 minute. I will explain all the topics. With reference to chemical fertilizer in India, consider the following statement. Agroeconomics पे based question है. Bentonite, chromite, kyanite, sillimanite. It is again minerals industry. Then 69. With reference to current trade in the cultivation of sugar cane in India, consider the following. A substantial saving in a seed material is made when bird keeps settling. In India, which of the following can be considered as a public investment in agriculture? So, agroeconomic. In India, which of the following can be considered as a public investment in agriculture? So it is a topic on agroeconomics. It is the question based on agroeconomy. In India, which of the following can be considered as a public investment in agriculture? Then in the context of India, which of the following is are considered as a practices of eco-friendly agriculture? Crop diversification, it is also based on agroeconomics. Interest coverage ratio, banking topic, static core banking का क्वेश्चन है. Then
Which of the following factor policies were affecting the price of rice in India? Agroeconomics. Then which among the following group of four countries of G20 international organization? Then foreign trade. Value of Indo-Sri Lanka trade is consistently increased in the last decade. Textile and textile article constitute an important items of the trade between the India and Bangladesh. So it is related to the international, it is related to the trade. The value of Indo-Sri Lanka trade has consistently increased in last decade. तो ट्रेड टॉपिक पे क्वेश्चन से किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे ये स्टैटिक क्वेश्चन से किसान क्रेडिट कार्ड बहुत पुरानी कंसेप्ट है 1998 से। तो उस पे उसमें कुछ चेंजेस हुए रिसेंटली, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बना हुआ है। WPI, MSP, Indian economy consider the following commercial paper, MSP, WPI, CPI. So again, based on static point, then with reference to financial foreign direct investment. Foreign direct investment in India, which of the following is are considered as a major characteristics? Then, with reference to India, at present, which of the following statement are correct? International trade again part of economics, IEA safeguard. Then non-financial, in the context of Indian economy, non-financial debt include which of the following? तो पूरे क्वेश्चंस देखने के बाद हमें जो कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं, हम पहले इनको एक एक पॉइंट आउट कर लेते हैं। Then trade related investment measures, TRIMS, West Texas Intermediate, sometime found in the news. Then RBI decide, if RBI decide to adopt an expansionist monetary policy. Then district central cooperative bank deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and regional commercial banks. Then economic liberalization. Cyber insurance. तो ऑब्जर्वेशंस कौन से अलग अलग ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि जो हमें रिक्वायर्ड है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि डायनेमिक जो कंसेप्ट है, डायनेमिक कंसेप्ट
विथ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, तो हम उनको कवर करेंगे। डायनेमिक कंसेप्ट विथ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स हमें कवर करने फ्रॉम 1 ऑफ जून टू अप्रैल 2026। जून 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक जो भी कुछ इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कंसेप्ट्स है उन कंसेप्ट्स को हम कवर करेंगे। डायनेमिक कंसेप्ट with related to the economics. Dynamic concept with related to economics is first observation. Second, हमें जो भी कुछ important static point है, important concepts को भी cover करना है। important concepts जैसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है नेशनल इनकम से। सो नेशनल इनकम में जो भी जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एनडीपी है, ऐसे कुछ जो भी टॉपिक्स है बेसिक स्टैटिक। सो इसमें कुछ करंट रिगार्डिंग हैपनिंग होता है तो उन कंसेप्ट को भी अच्छे से करना है। मतलब न्यूज में जो भी कुछ इकोनॉमिक्स के रिलेटेड न्यूज चल रही है तो उसके स्टैटिक को जाके कवर करना है, क्योंकि जो एक क्वेश्चन पेपर में हम देख रहे हैं कि कैसे डायरेक्टली रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन इंटरेस्ट पेमेंट, ऐसे उनकी फैक्ट्स प्रोवाइड किए उन्होंने। और नीचे क्वेश्चंस में कौन सा प्राइमरी डिफिशिएट है, कौन सा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिशिएट है, कौन सा फिस्कल डिफिशिएट है, उस पे उन्होंने ऑप्शंस फ्रेम किए। सो क्वेश्चन मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हमें दिखाई देते। और उसी पेपर में दूसरा एक क्वेश्चन, आई थिंक ये पेपर 2022 या 2024 का पेपर था, तो उसमें ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। सो हमें स्टैटिक कंसेप्ट बहुत अच्छी करनी है। नेशनल इनकम, उसके बाद पोवर्टी के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट है, पोवर्टी लाइन क्या है, वो पोवर्टी लाइन क्या है। देन एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट है, जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा कि वहां पे कैजुअल वर्कर पे क्वेश्चन था। एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, कैजुअल वर्कर्स क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट की बेसिक पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें करनी होगी। नेशनल इनकम, पोवर्टी, उसके बाद हमें बजट पे क्वेश्चन दिखाई दी। बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर, देन डिफिशिएट, डिफरेंट टाइप ऑफ फिस्कल डिफिशिएट, बजट डिफिशिएट, प्राइमरी डिफिशिएट, मॉनेटरी डिफिशिएट। सो बजट पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब बेसिक कंसेप्ट ऑफ बजट। देन फॉरेन ट्रेड पे क्वेश्चन था, फॉरेन ट्रेड। उसके बाद एग्रो इकोनॉमिक्स, एग्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्रॉपिंग, then concept of MSP, issue price, buffer stock, then crops, different crops उसके रिगार्डिंग जो भी प्राइजेस है। तो एग्रो इकोनॉमिक्स एक हॉट टॉपिक है लास्ट 3-4 सालों से, कि जिसपे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है। उसके बाद है बैंकिंग। बैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस 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 इसलिए कर रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट भी करनी है, जो हमें सिंगानिया, रमेश सिंह या जो भी आपकी क्लास नोट्स है उससे आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, बैंकिंग की बेसिक कंसेप्ट। और उसके बाद बैंकिंग का करंट अफेयर। साल भर में बैंक और मनी, फाइनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक है। तो यूपीएससी का ऑलवेज फोकस होता है कि जो भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इसमें से एक बैंकिंग है। साल भर में बैंकिंग में बहुत से डिसीजंस लिए जाते हैं, बहुत से करंट अफेयर रिगार्डिंग पॉइंट्स होते हैं, इसलिए उस पर बेस्ट एक क्वेश्चन होता है बैंकिंग। करंट बेस्ड क्वेश्चन है बैंकिंग का।
देन कंसेप्ट, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स। अभी जब भी बैंकिंग आप करोगे तो ये बेसिक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर, क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स। ये जो भी कुछ स्टैटिक कंसेप्ट, ये अभी तो पुराना हो चुका है। इस स्टैटिक कंसेप्ट के साथ जो भी स्टैटिक कंसेप्ट, इनको तो करना ही है, या स्टैटिक कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। या आरबीआई कौन से एक्ट के अंडर रेगुलेट की जाती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ऐसे स्टैटिक प्लस जो भी डायनेमिक्स है, दोनों को मिला के बैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं। और बैंकिंग में हर एक साल में लास्ट 5 साल के पूरे पेपर उठाएंगे तो एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन ऑन अ बैंकिंग सेक्टर, मिनिमम 2 to 3। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक, देन आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन आईआईबी, इन सब बैंक्स को भी मिला ले तो ये वेटेज लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तक, मतलब मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बैंकिंग, इंडियन बैंक्स हो या इंटरनेशनल बैंकिंग रिगार्डिंग जो भी इंस्टीट्यूशंस हो, दोनों को मिला ले तो लगभग लगभग कितने क्वेश्चन बन रहे, 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे, मतलब 10 मार्क का प्रिपरेशन। सपोज आप इन क्वेश्चन को गलत कराते तो आपका 10 मार्क्स का लॉस हो सकता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो बैंकिंग की कोर टॉपिक है जो आपको किसी एक बुक से, जो भी बुक से या नोट से, उसमें से आप कोर टॉपिक्स कवर कर लो। और उसके बाद कोर टॉपिक्स कवर करने के बाद आपको लास्ट एक साल में जो भी बैंकिंग में जो भी कुछ करंट अफेयर से, उसको केयरफुली देखना है। इस टॉपिक को तो करंट अफेयर, इस टॉपिक की करंट अफेयर को बहुत ही केयरफुली आपको देखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के करंट अफेयर। देन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में भी जो बेसिक कंसेप्ट है उनको कवर कर लेना है बुक में से। और करंट अफेयर बेस्ड एक क्वेश्चन हमें दिखाई देता है, कभी कभी मिसिंग भी है, लेकिन कोर बैंकिंग ऐसा टॉपिक है कि जहां से 3 से 4 टॉपिक्स आ रहे हैं, सो बैंकिंग इंपॉर्टेंट करना है। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री फॉरेन ट्रेड, इस पे कम क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन बैंकिंग, देन बजट, इस पे क्वेश्चन है। उसके बाद इंडस्ट्री के बाद पब्लिक फाइनेंस, इस पे भी रेयरली क्वेश्चन है, मतलब फ्रीक्वेंसी हर साल पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ रहे। और एक जो रिसेंटली फोकस्ड एरिया दिखाई दे रहा है, कैपिटल मार्केट। बैंकिंग में इसको एक्सटेंड करते हैं तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ये न्यू एरिया है कि जहां पे हमें ज्यादा क्वेश्चन दिखाई दे रहे, कंटिन्यूअसली बॉन्ड, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी, शेयर्स, डिबेंचर्स,
इकोलॉजिकल डेप्थ। सो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, ये भी तीन एरियाज है जहाँ पे हमें हर साल, पिछले कुछ सालों में हर साल एक से दो क्वेश्चंस हमें दिखाई दे रहे। सो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, इन टॉपिक को भी अच्छा करना है अलॉन्ग विद द बैंकिंग। तो जब हम बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट सबको मिला लेंगे तो लगभग लगभग 5 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इनको हमें कवर करना है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स। पूरे पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज 2 to 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गवर्नमेंट स्कीम। पिछले कुल प्रीवियस पेपर में भी हमने 2025 और 2024 2023 में भी एवरेजली देखा जाए तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस ऑन अ गवर्नमेंट स्कीम। तो जो भी कुछ 40 से 50 गवर्नमेंट स्कीम है, हमें एक बार उनको स्कैन करना है। 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रिपरेशन करते वक्त एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी ये वेटेज बढ़ भी जाता है। लास्ट और एक डिस्क्लेमर है, जो भी वेटेज यहाँ पे बता रहा हूँ, बैंकिंग हो गया, पब्लिक फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कभी कभी यूपीएससी का डायनेमिक पैटर्न होता है। तो वो क्या करते हैं, सडनली पैटर्न को शिफ्ट कर देते हैं। सडनली मतलब जहाँ पे बैंकिंग पे क्वेश्चन है तो नेक्स्ट साल ऐसा भी हो सकता है कि बैंकिंग टोटली मिस आउट और डायरेक्टली पब्लिक फाइनेंस या इंटरनेशनल ट्रेड या एग्रो इकोनॉमिक्स उस पर ज्यादा वेटेज बढ़ा दें। तो आपको जो भी कुछ बेसिक कंसेप्ट है उनको अच्छे से करना है, और बेसिक कंसेप्ट होते ही आपको डायनेमिक कंसेप्ट पे भी फोकस करना है। तो गवर्नमेंट स्कीम, 40 to 50 क्वेश्चन से गवर्नमेंट स्कीम्स पे। देन गवर्नमेंट स्कीम के बाद 40 to 50 क्वेश्चन बेस्ड ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लेकिन बेसिक्स हमें कवर करना ही है। सो नेशनल इनकम, ओवर अनएम्प्लॉयमेंट, बजट, फॉरेन ट्रेड, एग्रो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, देन इंडस्ट्री, पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉपुलेशन, और लास्टली बजट 2026 2027। अभी जो भी कुछ 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है, सो बजट, इसको भी हमें कवर करना है। सो पॉपुलेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे। अभी बजट और इकोनॉमिक सर्वे में हम कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। जो भी कुछ न्यू कंसेप्ट है, न्यू टॉपिक्स है, न्यू एरियाज है, उन कंसेप्ट पे बजट 2026 2027 1 फरवरी, इकोनॉमिक सर्वे, then population, government schemes, agroeconomics, industries, foreign trade, capital market. So these are the important areas
गिव मी 1 मिनट. देन नेक्स्ट. अभी आगे विलियम केली. ऐसा किया. इन्फ्लेशन पे भी क्वेश्चन है. इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है. उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये कोर कोर एरिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो जो इंपॉर्टेंट कोर एरिया जैसे इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग, बजट एंड फिस्कल डिफिशिट, देन external sector that is FDA, Forex, FDI, not FD, FDI, Forex, balance of payment, growth and development, employment, agroeconomy, then manufacturing sector, industrial sector, poverty, government schemes. So these are the core topics. These are the important topics we need to focus. अभी जब भी आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो उस न्यूज़पेपर को रीड करते वक्त क्या फोकस करना है. सपोज व्हेन यू आर रीडिंग द हिंदू, सो आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वहां पे भी हमें अलग अलग ग्रोथ, इन्फ्लेशन, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स या अलग अलग हेडिंग्स दिखाई देंगे. सो जब भी एफडीआई न्यूज है, एग्जाम्पल आप एफडीआई देख रहे हैं तो उसमें कैपिटल फ्लो क्या है, रुपी स्टेबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है. तो ऐसे अलग अलग आपको स्टैटिक कंसेप्ट को आपको कोरिलेट करना है.
सपोज जैसे मैंने अभी बोला कि आप एफडीआई की रिगार्डिंग टॉपिक देख रहे हैं। अभी जो ट्रेंड है कि गवर्नमेंट रूट कौन से, ऑटोमेटिक रूट कौन से, तो उस पे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। अभी क्वेश्चंस मिला था जिसमें जा रहा है कि एफडीआई सिर्फ शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टिंग कंपनी होती है उनमें ही आता है। तो थोड़ा कंसेप्चुअल इन डिटेल क्वेश्चन पूछ रहे। तो आप जब भी ये एफडीआई कर रहे हैं तो आपको कैपिटल फ्लो देखना है, आपको रुपी स्टेबिलिटी कंसेप्ट को देखना है, एक्सचेंज रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट पे कैसे असर हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे कैसे असर हो रहा है। तो उस हिसाब से भी काम करना है। तो जब भी आप टॉपिक कवर करेंगे तो आपको उस हिसाब से काम करना है। देन उसके बाद जैसे आप बजट पढ़ रहे हो, उसके बाद जब भी आप बजट पढ़ रहे हो तो बजट में भी आपको अलग अलग जो कंसेप्ट है, बजट डिफिशिट, रेवेन्यू डिफिशिट, ये स्टैटिक से ही पढ़ना है और उसको कोरिलेट करना है। तो इस हिसाब से हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी नेक्स्ट 3-4 मंथ है। अभी 3-4 मंथ में क्या करेंगे हम फोकस, जब भी आप आरबीआई के रिगार्डिंग रेपो रेट बढ़ाया, रेपो रेट डिक्रीज किया, तो आरबीआई के कंसेप्ट को कर लेना है। बजट, जब भी आप पेपर देखते हो बजट के रिगार्डिंग कुछ आता है, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कुछ आता है, स्कीम्स के रिगार्डिंग कुछ आता है, देन ग्रोथ के रिगार्डिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ आता है, देन एफडीआई के रिगार्डिंग कुछ आता है। तो इसकी इमीडिएटली स्टैटिक कंसेप्ट को भी कवर करना है। डायनेमिक करते ही स्टैटिक कंसेप्ट को भी कवर करते चलना है। और जो पहले हम शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इस पे न्यूज आती थी, लेकिन यूपीएससी में इतने क्वेश्चंस नहीं बनते थे स्टेट पीसीएस में, लेकिन यूपीएससी में बनता है। तो कैपिटल मार्केट, जो बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर से, इक्विटीज है, तो उसके बेसिक कंसेप्ट को पहले प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है। और ये सब आरबीआई बजट, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट स्कीम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एफडीआई, इसके लिए कौन सा भी बुक उठा लो, रमेश सिंह, उसके बाद राजीव वर्मा या सिंघानिया, ये 3 बुक से, 3 बुक में से कोई भी एक बुक उठा लो और वहां से ये टॉपिक रीड कर लो। देन जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे को रीड करेंगे, अभी कुछ दिनों में आने वाले, जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे को रीड करेंगे तो उसमें भी पूरा इकोनॉमिक सर्वे रीड करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो उसमें से भी आपको इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसमें से एक है ग्रोथ, ग्रोथ का चैप्टर, जिसको आपको अच्छे से करना है। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर, इन तीनों सेक्टर्स को आपको अच्छे से करना है। उसके प्रॉब्लम्स क्या, पोटेंशियल्स क्या, ये सब चीजें हमें अच्छे से कर लेना है यहाँ पे। सो इतना फोकस यहाँ पे करना है जब भी आप बजट पढ़ रहे हो तो, और सॉरी सर्वे पढ़ रहे हो तो। और बजट पढ़ रहे हो, उससे पहले आपको सिंघानिया, रमेश सिंह या राजीव वर्मा, उनमें से किसी भी बुक से बजट की बेसिक कंसेप्ट सब कंप्लीट कर लेनी है। बजट डिफिशिएट हो या प्राइमरी डिफिशिएट हो, उन सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद लास्ट फोकस पॉइंट, कुछ मैं आपको करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू दिखा रहा हूँ कि लास्ट कुछ दिनों में कैसे इकोनॉमिक्स पे कुछ करंट डिस्कशंस चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कोर इन्फ्लेशन का,
ठीक है, तो यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन exclude the food and fuel, represent the persistent long term pressure, inflationary pressure unaffected the short term viability। तो न्यूज में चल रहा था, इसलिए उस पे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया हुआ। देन FRBM एक्ट अगेंस्ट स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये भी न्यूज में था। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो VRR ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये जो वेरिएबल रिवर्स रेट है, इस पे ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो VRR ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके आंसर है 2 and 3। VRR helps in fine tuning short term interest rate and strengthening the monetary policy transmission mechanism, and VRR was first introduced as a regular liquidity tool in India post 2016 demonetization। सो ऐसी कंसेप्ट जब भी आ जाती है, आप पूरा कोर बैंकिंग कर लेते हैं और ऐसा कुछ न्यूज में पढ़ते नहीं, तो यू कैन नॉट डील सच ए क्वेश्चन। तो आपको करंट पे भी थोड़ा फोकस रखना है, जैसे ये कंसेप्ट हो गई। MSPP स्टैटिक का क्वेश्चन। क्वालिटी काउंसिल रिसेंटली क्वालिटी काउंसिल पे 2017 2018 में भी क्वेश्चन बना हुआ है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया लॉन्च द गुणवत्ता संकल्प इनिशिएटिव टू प्रमोट द क्वालिटी अवेयरनेस अमंग द सिटीजन। सो ये जो लास्ट इनिशिएटिव, उसकी वजह से ये फिर एक बार न्यूज में आया हुआ है। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पे ऑलरेडी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो ये क्यों है? गुणवत्ता संकल्प की वजह से रिसेंटली फिर एक बार न्यूज में है। ऊपर दिया है देखो। क्वालिटी काउंसिल of India was set up in 1997 as an autonomous body jointly by the Government of India and major industry association, not through the parliamentary legislation। और गुणवत्ता इनिशिएटिव की या संकल्प की वजह से ये न्यूज में है। देन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टोकन।
So World Liberty Financial Token. So sorry for interruption. Next question. World Liberty Financial Token. So which of the following correctly describes the World Liberty Financial Token? A token whose issuing entity reportedly froze and blacklists some wallet addresses, including those of major investors. Then digital aid. Next question. Digital yen and Japan's policy stance. Consider the following statement. Digital yen, then प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये एक गवर्नमेंट स्कीम से। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMK PMGKAY has extended for 5 years from the 1st January 2024, providing the free food grain to the NFSA beneficiaries under the scheme. Then next question, with reference to RBI's proposed draft norms on a gold loan, consider the following statement. With reference to RBI's proposed draft norms on a gold loan 2024, अभी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड लोन के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस किए हुए तो उस पे क्वेश्चन है। आप पूरा आरबीआई बेसिक पढ़ लोगे, बैंकिंग पढ़ लोगे, लेकिन ऐसे कुछ करंट टॉपिक पे आप फोकस नहीं करते हो तो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिस आउट कर सकते हो। तो विथ रेफरेंस टू आरबीआई प्रपोज ड्राफ्ट नॉर्म्स, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे हम पूरे इकोनॉमिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम इन डिटेल टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है विथ रेफरेंस टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। 2024 की एक फैक्ट है कि इन 2024 एडीबी कमिटेड 500 million to assist India's sites 2.0 program for the urban development. Then consider the following statement with regarding to India's macroeconomic management. Macroeconomic management पे ये क्वेश्चन है। Then which of the following best explain the why lab grown milk has been projected by food system modeler as a large disruptor than the plant-based milk in India's dairy economy. Then
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको इंडियन इकोनॉमी के बुक में भी मिल जाएगा। देन करंट अकाउंट डिफिशिएट, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्टैटिक पॉइंट। करंट अकाउंट डिफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, सो स्टैटिक क्वेश्चन है ये भी। देन with reference to 10 year of Amrit pharmacies, which of the following best explain प्रधानमंत्री दिव्यशा केंद्र पीएमडी के इनिशिएटिव्स, उसके बाद जीएसटी काउंसिल, then next with reference to employment linked incentive scheme recently approved by the union cabinet, consider the following statement. The scheme will cover all the new jobs created between the 1st of August 2024 to 31st July 2026. So it is a employment link incentive scheme recently approved by the Union Cabinet. Consider the following statement. So scheme will cover all the new jobs created between August 1st, 2024 to July 31st, 2026. जहां तक ये स्कीम चल रही है 1st of August 2024 टू July 31st, 2026. Then Defense Acquisition Council DAC, DAC पे बेस्ट क्वेश्चन है। It accords acceptance of necessity for the capital acquisition proposal. Then long-term integrated perspective plan, buy, buy and make categories. Then with reference to India's newly released vision document for strategic metal, consider the following statement. ये जो क्वेश्चन है with reference to India's newly released vision document for strategic metal. India's newly released vision document for strategic metal. Consider the following. So if we both vision document emphasize recycling and low carbon technology. ये जो गिनी कोएफिशिएंट पे बेस्ड क्वेश्चन, ये स्टैटिक का क्वेश्चन। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, consider the following statement regarding informal credit and financial inclusion in India. So informal credit and financial inclusion in India.
Then dedicated freight corridor, DFC. With reference to additional Tier 1 bond in India, consider the following statement. With reference to additional Tier 1 bonds in India, consider the following statement. These bonds can be permanently written down. Then National Industrial Classification 2025, consider the following statement. It is also National Industry Classification. ये current based question है. NIC 25 introduces separate 5-digit activity cluster for digital intermediate services, classifying them distinctly from both information and communication and financial services. So, National Industrial Classification. ये कुछ लास्ट एक साल की अलग अलग आपको न्यूज दिखा रहा हूं मैं कि जो इकोनॉमिक के प्रिपरेशन के साथ हमें इन एरियाज पे भी फोकस करना है. उसके बाद युवा, AI फॉर ऑल इनिशिएटिव. देन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, उसके रिगार्डिंग है. देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट. ये भी एक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक है पाम प्रोडक्शन का. More than 85% of world's crude palm oil is produced in Malaysia and Indonesia. Correct statement है ये. और peak production life of palm trees is generally considered to be about 20 years. So क्योंकि एडिबल ऑयल इंडिया का 70% से ज्यादा एडिबल ऑयल इंपोर्ट ही करता है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. With reference to recently approved Merit initiative, consider the following. क्या है ये initiative? Current affair regarding against. एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इन्फ्लेशन. With reference to India's export promotion mission, EPM, consider the following statement.
Then product link incentive scheme. With reference to product link incentive scheme for white goods in India, consider the following statement. With reference to sample registration system, statistical report 2023 on a female child marriage in India. With reference to expanded Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJY announced in October 2023, consider the following statement. Consider the following statement about regarding India's first bamboo-based bioethanol plant. India's first bamboo-based bioethanol plant. With reference to proposed जीएसटी रिफॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग. रिसेंटली जो भी कुछ जीएसटी के रिफॉर्म प्रपोज किए उसके उस पे बेस्ड क्वेश्चन है. आप पूरा जीएसटी स्टैटिकली प्रिपेयर करते हो और इन एरियाज पे फोकस नहीं रहता है और कभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो मिस आउट होने के चांसेस होते हैं. Consider following statement with regarding to India's first bamboo-based bioethanol plant जो आसाम में प्रपोज्ड है. With reference to semiconductor design and manufacturing in India, consider the following statement. Again, semiconductor पे बेस्ड है. With reference to जन विश्वास रिफॉर्म. क्या है जन विश्वास रिफॉर्म? न्यू स्कीम से रिसेंटली. With reference to India, Middle East Europe Economic Corridor (IMEC), consider the following statement. With reference to India's recent export trend, consider the following statement. With reference to National Action Plan on Antimicrobial Resistance 2.0 (NAP AMR 2.0) launched by India in 2024, consider the following. One Health approach.
Consider the following statement regarding India's conditional grant in India's fiscal framework. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भी कुछ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्ट में कुछ चेंजेस हुए उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक 100 ईयर से भी ज्यादा साल पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन इकोलॉजिकल डेप्थ, net depletion of national capital caused by the country's ecological footprint exceeding its biocapacity. So ecological depth, current affair based question, environmental economics. Then International Astronomical Union, AU, IAU, approving a new names for Martian landform. Consider the following statements. With reference to recent proposal of International Monetary Fund IMF alter the classification of India's foreign exchange framework, consider the following. तो यहाँ पे मैंने अभी बहुत सी कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन किया, और जो भी अलग अलग कंसेप्ट है उन सब कंसेप्ट को मैंने अलग अलग कंसेप्ट को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास है फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो इन 3 मंथ में जो भी न्यूज़पेपर में जो भी अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, ग्रोथ, फॉरेन ट्रेड, एफडीआई, तो आपको स्टैटिक के साथ कोरिलेट करना है और डायनामिक पे भी फोकस करना है। और उससे पहले भी जो 7-8 मंथ पहले उसी अप्रोच से इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है। मैंने अभी आपको करंट बेस्ड क्वेश्चन दिखाए कि जिनका सोर्स स्टैटिक में है लेकिन करंट कुछ हैपनिंग हो रहे तो उसमें से भी ऑप्शंस बन रहे, यही मुझे बताना था कि कैसे स्टैटिक प्लस डायनामिक का मिक्स कोलैबोरेशन है, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है पेपर सेटर के पास, तो वी नीड टू प्रिपेयर थरली, मोर कॉम्प्रहेंसिवली टू डील विद द इकोनॉमिक्स। सो नेक्स्ट सेशन से हम कुछ कोर टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड देन डायनेमिक कोर टॉपिक कवर होने के बाद देन वी विल शिफ्ट टू द डायनेमिक्स टॉपिक्स, और जो भी कुछ न्यूज में चल रहा है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग तो उनको कवर करेंगे। Thank you so much for watching this session. In next session, we will start with the basic concepts of economics. In 3-4 session, we will finish the basic concept and then we will shift to the dynamic topics, और जो करंट में जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं विद रिगार्डिंग टू इकोनॉमिक्स, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशंस। हैव अ नाइस डे।